from there. So when it comes to elasticity, the thing that we need to understand is elasticity has to deal with the Hooke's law. And this law is only applied to springs. Now, what is Hooke's law? In order to understand Hooke's law, first we need to understand the term spring constant and extension. एक्सटेंशन को डिफरेंट वेज में डिनोट किया जाता है, एक्स से डिनोट भी करते हैं और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, एल से भी डिनोट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को नॉर्मली के से डिनोट किया जाता है हमारे पास. ठीक है. सो हुक्स लॉ टेल्स अस दैट force is directly proportional to extension produced provided limit of proportionality does not. ठीक है. So when we remove the proportionality sign, we get a constant which is known as the spring constant, which I told you before. Here F is the applied force and X is the extension produced. Now, how do we define extension? Extension is defined as change in length minus original length. Suppose ये एक स्प्रिंग था, अभी इसके पास 0 न्यूटन वेट है. ठीक है. तो इसकी जो ये लेंथ है, सपोज इट्स 10 सेंटीमीटर. नाउ आई हैव एडेड 10 न्यूटन ऑफ वेट टू इट. अब यहां तक तो उसका क्या है, ओरिजिनल लेंथ थी. दिस चेंज इन लेंथ इज नोन एज द एक्सटेंशन. जैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करते थे इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, उसी तरीके से आपके पास दो वेज हैं कि या तो आप जस्ट इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट कर लो या फाइनल लेंथ को ओरिजिनल लेंथ में से क्या कर लो, माइनस कर लो. लेट्स से कि दिस न्यू लेंथ इज अप टिल हेयर. ठीक है. दिस न्यू लेंथ इज 14 सेंटीमीटर. So how will we find out the extension? 14 centimeter minus 10 centimeter. So extension produce this 4 centimeter. So अब जो पॉइंट बताने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है. As long as Hooke's law is being followed, that is force is being proportional to x. For example, मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन ऐड किया वेट, तो एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 4 सेंटीमीटर. मैं 20 दे आस्क के 20 न्यूटन पे क्या होगा, इफ हुक्स लॉ इज बीइंग फॉलोड, तो एक्सटेंशन क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट रहता है. ठीक है. 30 न्यूटन पे कितना प्रोड्यूस होगा, we will add another 4 to it to 12 centimeter. The difference between the two should always remain constant. The moment the difference increases, that means Hooke's law is not being followed. तो उसका जो ग्राफ बनाया जाता है, force versus extension graph, if we're getting a straight graph like this, it means Hooke's law is followed. But if the graph gets a curvature, it bends from its original path. ये उसका original section था. It was supposed to go straight, but it curved. So the point at which it gives the curve is known as limit of proportionality. That means if I increase the force above this point, there would be permanent change in. So what's another name for limit of Elasticity, elastic limit. Oh, okay. But if I remove the force before it, the object will go back to origin.
passes through the origin, मैथ्स की लैंग्वेज यूज करें, if the graph passes through the origin, it means बाद हम उसको ट्रेस बैक करें, it means it's following Hooke's law. But if it's not passing through the वो, तो मतलब if अगर फॉर एग्जांपल इसमें परमानेंट चेंज इन शेप आ गया है, it will not be passing through the origin anymore, so that would be an indication कि वो Hooke's law को फॉलो नहीं कर रहा. ठीक है. तो ग्राफ जो ऑब्जेक्ट्स हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं उनको हम क्या, वो आते हैं स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ्स हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते दे आर ड्रॉन लाइक दिस, दैट इज कि अब उनकी एक्सटेंशन, इफ द एक्सटेंशन इज ट्रेसिंग बैक टू जीरो, इट मींस वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं. बट अगर उनमें परमानेंट चेंज इन शेप आ गई, फॉर एग्जांपल बिफोर पुटिंग द लोड उसकी लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर. नाउ आफ्टर रिमूविंग ऑल द वेट्स अभी भी उसकी जो टोटल लेंथ है इट्स गेटिंग 12 सेंटीमीटर, इट मींस परमानेंट चेंज इन शेप आ चुका हुआ है. एक सेकेंड. टू वी अंडरस्टैंड के ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करना है इस चीज को. जी Yes. if a table is given ना, as I told you, मैं वो मतलब वर्चुअल वैल्यूज बता रहा हूँ कि if a b c d e these are the extension produced. ठीक है. हमने एक्सटेंशन को फाइंड आउट करने के लिए गिवन लेंथ को हमेशा ओरिजिनल एलिमेंट में से माइनस करना है. ठीक है. ओरिजिनल लेंथ का फैक्टर चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स 18 20 22 24 26, इन सबको मैं माइनस किससे करूंगा, 10 से. जो 10 सेंटीमीटर वॉज द ओरिजिनल लेंथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8. इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10. इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12. इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14. नाउ सी डिफरेंस अगेंस्ट एवरीथिंग क्या हमारे पास, सॉरी हाँ ये पहले का था, ये बनेगा. अच्छा ये मैंने ओरिजिनल लेंथ लिखी, मैं अपनी ही लिखे हुए पे कंफ्यूज होगा. अच्छा ओरिजिनल लेंथ क्या थी, 10 सेंटीमीटर. फाइनल लेंथ क्या बन रही है, 18 20 22 एंड 24, वेट्स ऐड करने के बाद हमारे पास. ठीक है. सो 18 माइनस 10 आंसर क्या आया, 8. 20 माइनस 10 आंसर क्या आया, 10. 22 माइनस 10 आंसर क्या आया, 12. एंड लास्ट क्या था, 24. 24 माइनस 10 क्या आ गया, 14. नाउ सी के यूनिफॉर्म एक्सटेंशन आ रही है. कैसे पता लगेगा यूनिफॉर्म एक्सटेंशन आ रहा है, नाउ वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज Constant. क्वांटिटीज. 8 एंड 10 में कितना डिफरेंस है, 2 का. 10 एंड 12 में 2. डिफरेंस कितना है, 2 का. 12 एंड 14 में डिफरेंस कितना है, 2 का. सो इट मींस अभी तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है. बट अगर सडनली नेक्स्ट डिफरेंस 3 का आ जाए या 4 का आ जाए, इट मींस दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. हम इसके अगेंस्ट फोर्स की वैल्यू को नोट करेंगे. दैट वुड टेल अस कि दिस इज द पॉइंट वेयर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैज रीच्ड. जैसे ही हम इससे नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इट्स नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ एनीमोर. हुक्स लॉ इज ओनली फॉलोड इफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. यानी अगर 10 न्यूटन पे 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, तो नेक्स्ट 10 न्यूटन ऐड करने पे भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 2. 10 न्यूटन ऐड करने पे भी क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर. वैल्यूज ऑब्वियसली वेरी करेंगी, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, फोर सो फॉर्थ एंड सो ऑन. बट हुक्स लॉ बेसिकली ये बता रहा हूँ. ओके. Yes. अब इसमें एक और पॉइंट अपडेट ऐड और करना है. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, दैट इज शोन इन द वेरी फर्स्ट डायग्राम. फोर्सेस हमने पढ़ा हुआ है, फोर्सेस क्या कर सकती हैं, दे कैन चेंज शेप. तो इफ इट्स इंक्रीजिंग द लेंथ, इसको टेंसाइल स्ट्रेस का नाम दिया जाता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम दिया जाता है. शेप कह रहे होते हैं तो उसको शेयर का नाम दिया जाता है, उसको टॉर्शनल फोर्स का नाम दिया जाता है. तो अगर फोर्स अप्लाइड और वो उसकी लेंथ को चेंज कर रहा है, तो उसको टेंसाइल फोर्स का नाम दिया जाएगा. इफ इट्स कंप्रेसिंग द ऑब्जेक्ट, इट वुड बी नोन एज कंप्रेसिव फोर्स. इफ इट्स चेंजिंग द शेप ऑफ इट, ठीक है, उसमें किसी तरह का बेंडिंग प्रोड्यूस हो रहा है, इट वुड बी नोन एज बेंडिंग फोर्स. एंड अगर उसमें रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, टॉर्शनल फोर्स, यानी ट्विस्ट कर रहे हैं आप उसको. ओके. Yes. अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का टर्म भी यूज होता है. टेंसाइल का मीनिंग होता है, स्ट्रेस का मतलब बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ.
ओरिजिनल लेंथ हमारे पास इस केस में क्या थी, 10, और चेंज इन लेंथ क्या प्रोड्यूस हुई थी, 18. So this is known as strain and force per unit area is known as stress. This is the strain is the extension, right? Yes. नहीं नहीं, एक्सटेंशन नहीं है, बिकॉज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है। अगर माइनस हो रहा होता तो एक्सटेंशन कैसे। Oh, okay. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज के इफ वी आर गेटिंग अ स्टीपर ग्राफ वर्सेस लेस स्टीप ग्राफ, तो हाउ कैन वी कंपेयर द स्प्रिंग कांस्टेंट विद इट। अब इसका एक्सटेंशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है सेम वैल्यू के ऊपर, ऐसे कंपेयर करते हैं, वी विल ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, दिस इज फोर्स और उसके अगेंस्ट ये एक्सटेंशन है। अब ये 2 प्रोड्यूस हुआ सेम फोर्स पे, और ये कितना प्रोड्यूस हुआ, 4 सेंटीमीटर। So the steeper it is, the less effect it has. तो लेसर फोर्स के ऊपर मोर एक्सटेंशन प्रोड्यूसर्स, सॉरी यहाँ पे वो होता है, एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे फोर्स होता है, मैंने उल्टा लिख दिया। तो ऐसे Oh, लाइन ड्रॉ नहीं करनी, हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी। ऊपर भी हमने वैसे ही ड्रॉ किया। फॉर सेम वैल्यू ऑफ फोर्स, इसका एक्सटेंशन क्या हुआ है, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, इसका एक्सटेंशन क्या हुआ है, लेस प्रोड्यूस हुआ है, विच मीन्स इट, इसकी एक्सटेंशन रेट क्या है, बिगर, higher. हायर, एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, लो। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, हार्ड लार्ज, सॉरी। एंड हाउ डू वी नो दैट, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू के एक्स एंड के इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स, एक्स हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद इट। So just by looking at the graph, we can identify the values कि कैसे उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। ओके। Yes. अब इसमें एक और पॉइंट भी ऐड होता है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस बट इट्स फॉर जनरल नॉलेज हमारे पास। व्हाट इफ टू पैरेलल स्प्रिंग्स आर अटैच्ड, व्हाट इफ दे आर अटैच्ड इन सीरीज, एक्सटेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, what comes to our mind? Again, I'm saying it's not the part of the syllabus we are generally talking about. तो पैरेलल में तो सेम ही होगी ना? इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों के क्रॉस, Yes. और इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसमें एक्सटेंशन क्या हो जाती है, डिवाइड, और इसमें क्या होती है, Divide. Add. ठीक है। बाकी ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करना है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहाँ पे रीच हो रहा है, हाउ टू फाइंड आउट दी, वो डिफरेंट ग्राफ्स देखे, लेट मी शो यू द क्वेश्चन, द फ्यू ऑफ देम। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अप टिल हियर। तो हम लोगों को ये देखो, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ। Yes. Yeah. Okay. What is the question they're asking here? They have asked us, okay, when an object of unknown weight is hung on the spring, the length of the spring is 16.4. What is the weight of the object? उसने हमें ओरिजिनल लेंथ दे दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ उसने हमें 16.4 दिया हुआ है, विच मीन एक्सटेंशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 16.4 माइनस 15, 1.4। ठीक है, वो विल सी द वैल्यू यहाँ से 1.4 कहाँ पे आ रहा है, ये 1 आ गया, ये 1.234, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ से 3.2. इसको यहाँ पे लेके जाएंगे एंड वुड सी ये वो यहाँ पे आके मैच हो रहा है, ये क्या वैल्यू बन रही है, 3.5 की। तो क्या वेट बना हमारे पास, 3. 3.5. जिसने ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया। अब ये स्प्रिंग देखो, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बाय एडिंग द वेट इट केम आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। अब उसने 30 सेंटीमीटर एक्सटेंशन शो की हुई है, तो यहाँ पे क्या कितना वेट हैंग किया होगा कि वो 30 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आई होगी यहाँ पे। 200. 200. यूनिफॉर्मिटी है ना हमारे पास, 100 पे अगर 20 दे रहा है तो एडिशनल 10 वो किस पे देगा, एडिशनल 100 के ऊपर।
तो वैल्यू क्या आ जाएगी 200। अब यहाँ पे उसने बोला एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैयर लेंथ माइनस ओरिजिनल। क्योंकि हमें पता है ना कि वाई एक्सिस पे क्या आता है हमारे पास, एक्सटेंशन, एक्स एक्सिस पे क्या आता extension है वेट। with अब यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, द डायग्राम शोज अ स्टील स्प्रिंग एंड अ ग्राफ, और जो भी है उसमें, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन अ लोड ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, 20 न्यूटन के अगेंस्ट हमने try यहाँ से वैल्यू देख लेनी है। ये क्या आ जाएगा 8 8। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी थी, इट्स 5, ये 5.2 अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। तो 8 माइनस 5.2, 3 पॉइंट समथिंग या 2 3 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा, 3 ही आएगा हमारे पास, क्लोजेस्ट इज आंसर इज 3 सेंटीमीटर। अब ये हमें कैसे पता ये ओरिजिनल लेंथ है, बिकॉज एट जीरो वेट जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होती है दैट इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल लेंथ। origin. डू वी अंडरस्टैंड अयान, डू वी हैव एनी कंफ्यूजन अप टिल हियर? No, sir. अहमद, Yeah. okay, read this question yourself and do not say the answer, just let me know when you have the answer. 40. What extension do we have here? 14 10, 10 यहाँ पे भी 10। तो अगर 20 न्यूटन है तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 40 40 इक्वल वेट्स ऐड करने हैं ना। आई गेस 40. जी, 40 20 पे 10 आ रहा है तो 40 पे 10 का आएगा ना, तो 40 आएगा I think so। हमें इनिशियल वैल्यू भी तो नहीं पता ना। इनिशियल वैल्यू नहीं चाहिए ना। नहीं नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर हम के निकाल लें ना, तो के क्या आएगा हमारे पास, 20 इज द वेट, के इज टू फाइंड आउट एक्सटेंशन कितना आया है 10। तो 20 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर। तो अब हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, तो के एक्स पुट करना है। के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 2 2 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर, एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितनी आई है 10, तो कितना आ गया 20, तो 40 आएगा हमारे पास। ठीक है, इफ वी गो विद द वर्किंग। yeah डू यू अंडरस्टैंड इट, कि हमने बस एक बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं, कुछ कोई और कोई रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई किया है। अभी उसी नेचर का क्वेश्चन है, उसने हमें चेंज इन लेंथ भी दे दिया, सॉरी ओरिजिनल लेंथ भी दे दिया, चेंज इन लेंथ भी दे दिया। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2.2 या 1.8, 17 माइनस 2.2 19.2, 2.2 आएगा। 1.8. ठीक, 1.8, 2.2 एक 1.8 बोल रहा है, एक 2.2 बोल रहा है, 2.2 होगा आई गेस, 2.2 होगा। तो यहाँ से हम 2.2 की वैल्यू देंगे, 2.2 कौन सा बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। इसको हम लेके जाएंगे अप टिल हियर विद टच इज द ग्राफ, तो उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या बन रही है 3 न्यूटन। mm, ओके, do you understand what kind of a question are we going to have in the exam in context to these? बहुत कम आते हैं इनसे रिलेटेड, मोस्टली वो प्रेशर सॉलिड्स एंड लिक्विड के केस में ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कम ही आते हैं हमारे पास। But do we understand or do we have any question up till here? I'm going to show you a few of the theory question as well कि कैसे उसको करना है।